Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss the important PIB current affairs from 6 to 12 August, है ना? And we are also starting one initiative for descriptive answer writing. Okay, so in the PIB session, I'll be giving you the descriptive questions, and those descriptive questions will be discussed in the next session. ठीक है? We'll discuss it also, and I will be giving you the model answers also, है ना? It will give you a rough idea how to write answers, how to build content and how to structure your arguments. ठीक है? So in this video I'll be giving you question today. ठीक है? Since RBI and NABARD has become descriptive from this year, a lot of students are in limbo how to go about this descriptive answer writing, है ना? So that's why we are giving you these questions so that you can practice on it, and we will be providing you with the model answers. ठीक है? So the best way to prepare descriptive answer writing is to practice it. ठीक है? Is to practice it. So these are the questions which will help you to write the answers and to hone your skill in the domain of descriptive answer writing. ठीक है? So this is the question of economic and social issue. It is relevant for RBI also and NABARD also. ठीक है? It is relevant for RBI and NABARD. है ना? Assess the economic growth of India after 1991 LPG reform. है ना? So you need to assess the economic growth of our country after 1991 LPG reform. Then question related to agriculture and rural development for your NABARD grade A, NABARD grade A and grade B. ठीक है? Identify the regional differences in agronomic development and discuss the reasons responsible for such regional imbalance. ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या बात करनी है कि इंडिया में इन आर कंट्री व्हाट आर द एरियाज वेयर एग्रोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंशिएटिंग, है ना? Like for example, we have Punjab and Haryana, then we have Vidarbha or Marathwada, we have Rayalaseema region, we have Northeast also. So why the agronomic development in this area is different, है ना? One area is prospering, another area is not prospering. So why this is so, है ना? You need to identify these things and you need to put it on paper. ठीक है? In the first question, that is assess the economic growth of India after 1991 LPG reform. This is about the growth trajectory of India. You can discuss about the various sectors of economy. ठीक है? And since this is assess, you need to assess the economic growth. You also need to tell the various aspects of economic growth, है ना? Various aspect means there is income inequality also. Poverty has also risen, है ना? So all these are the pillars on which you have to build your answers. ठीक है? I have given you the ample clarity on how to write these answers. I will also be giving you the model answers on these questions, है ना? In the next session. In next session you will be getting the model answers. ठीक है? So after these descriptive questions, we will now move ahead for our PIB current affairs. ठीक है? This PIB current affairs will give you fodder material to write your descriptive answer also. To write descriptive answer, and it will also be giving the fodder materials to attempt the prelims of RBI as well as NABARD, as well as SEBI also, है ना? There is general awareness in SEBI also. So all the regulatory bodies, this PIB current affairs video is very much relevant and very much useful. ठीक है? So I hope you are comfortable and in good health to listen to these PIB current affairs. Okay. So in today's session we will be talking on these five pillars. ठीक है? We will be talking on these five pillars. One is your Shanghai Cooperation Organization, because recently our agriculture minister have addressed the all the agricultural ministers of rest of the SCO members, है ना? There was one meet based on our agricultural development. ठीक है? So since it is about agriculture and rural development, it becomes important for your NABARD, and there is one topic called agriculture in your RBI syllabus also, है ना? And apart from it, there is one topic called as international institution. ठीक है?
in syllabus of, it is there in syllabus of RBI, and it is there in syllabus of NABARD also. ठीक है, so that's why this also becomes important for the exam. ठीक है, then we will talk about IPCC report. Recently IPCC have launched the 6th assessment report. ठीक है, what is it that we will going to discuss? PM Ujjwala 2.0 है ना, earlier there was the PM Ujjwala scheme. So now we will discuss the rest of the pillars and rest of the features of PM Ujjwala. ठीक है, then we will have close look on recent population data also, which is going to be helpful for your NABARD exam, है ना, because you are having the whole chapter on population trends and economic underdevelopment in NABARD. ठीक है, then we will also have look on some prelim related material which was there on PIB. ठीक है, so without wasting any time, let us move ahead for उससे पहले मैं ये एक बता दूं कि हमारे जो नई बैच स्टार्ट हो रही है 30th अगस्त से फॉर RBI ग्रेड बी एंड फॉर NABARD also. So we are offering 40% discount. So those who want to prepare with us can enroll with us with the 40% discount, है ना, and we will be ensuring your selection. We will be giving you the material and guidance for your phase 2, phase 1, phase 2 and for your interview also. ठीक है, so we are offering the same amount of discount on our NABARD courses also. ठीक है, so if you want to ensure your selection you can enroll with us. ठीक है, so शुरू करते हैं दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टेब्लिश हुआ आपके 2001 में. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001, है ना, एंड देयर वर 6 founding members for this Shanghai Cooperation Organization. It is permanent intergovernmental international organization. So who are the 6 permanent members? There are 8 permanent members, but these 6 are the founding members. Republic of Kazakhstan, then Republic of China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. These were the 6 founding members, है ना, and later the 2 members joined, that is Republic of India and Republic of Pakistan. ठीक है, so total 8 members are there. India and Pakistan joined in 2017. Please remember this date. ठीक है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. India and China joined, India and Pakistan joined in 2017, but SCO is into picture in SCO was established since 2001. ठीक है, and moving further, who are all the members? All the 8 members are from Asia only. ठीक है, China is there, then India is here, then Pakistan, your Tajikistan, then here is your Uzbekistan, Kyrgyzstan, here is your Kazakhstan and Russia. Russia is here. This portion is your Russia. ठीक है, आधा रशिया आपका यूरोप में आता है और आधे से ज्यादा रशिया आपका एशिया में आता है. ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका मंगोलिया. मंगोलिया, ठीक है. सो ये सारे 8 मेंबर आपको ध्यान में रखने हैं. बेसिकली क्या है, अफगानिस्तान नहीं है, बाकी सारे स्थान इसमें है. कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान भी है. ठीक है, तो अफगानिस्तान छोड़ के सारे स्थान आप इसमें कंसिडर कर सकते हो. और उसके अलावा चाइना, इंडिया और रशिया. ठीक है, नॉन स्थान वाले 3 ही कंट्रीज है, चाइना, इंडिया और रशिया. ठीक है, मूविंग फर्दर, अभी रिसेंटली आईपीसीसी ने एक 6th असेसमेंट रिपोर्ट लॉन्च किया है. What is the 6th assessment report? In the 6th assessment report, they are assessing the ecological state of the whole world. ठीक है, there are so many ecological imbalances due to global warming, है ना. Global warming and climate change is also a real threat now, है ना. So these all the threats which are there regionally across the world, they are these IPCC is assessing them, है ना, and based on that they are also suggesting the mitigation strategy and the strategy and the initiatives that needs to be taken in order to prevent the climate change. ठीक है,
So the working group 1 contribution to the 6th assessment report addresses the most up-to-date physical understanding of the climate system and climate change. ठीक है, bringing together the latest advance in climate science and combining multiple lines of evidence from paleocline observations, process understanding and global and regional climate simulation. ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, they are assessing the climate change threat, climate change related threats across the globe on regional basis. ठीक है. So these are some factual information about IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change is international body set up in 1998. ठीक है? It was set up in 1998 by WMO, that is World Meteorological Organization, and UNEP to provide policymakers with regular assessment of scientific basis of climate change, its impacts and future risks, and option for adaptation and mitigation. ठीक है, ये इनका फंक्शन है. तो एज ऑफ नाउ they have floated the 6th report. Every report is called as assessment report. Why it is called as assessment report? Because they are assessing the various threats that are there by various entities, by various stakeholders of the world. ठीक है, अमेरिका की तरफ से कुछ एयर पोल्यूशन होता है, यूरोप की तरफ से कुछ वाटर पोल्यूशन होता है ना, ओशियन मरीन पोल्यूशन भी होता है, इंडिया में भी बहुत पोल्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ योर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, है ना. सो ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन. सो ड्यू टू दिस द क्लाइमेट इज चेंजिंग डे बाय डे, है ना, एंड आईपीसीसी इज मॉनिटरिंग दैट क्लाइमेट चेंज. ठीक है. IPCC assessment provides a scientific basis for governments at all levels to develop climate related policies. ठीक है. United Nations Framework on Climate Change, UNFCC, underlie negotiations at the UN Climate Conference. UNFCC एक UN climate conference है to prevent the climate change. ठीक है. Now moving further, IPCC, about IPCC. ये IPCC एक United Nation की body है. ठीक है, इसके नाम में UN नहीं है, but it is United Nation body. ठीक है. most of you people may not be knowing this, but this you should remember. This is one of the key point. It is under United Nation. ठीक है, and I have taken this screenshot from IPCC site only. Okay, so IPCC was created to provide policymakers with regular scientific assessment on climate change. तो ये हमने अभी पढ़ लिया. ठीक है, अर्लियर स्लाइड में भी यही था, पहला पैराग्राफ क्या था, यही था. ठीक है. अब आते हैं काम की चीज पे. यहाँ पे जो डाटा दिया है ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर में बहुत ज्यादा काम आएगा. ठीक है, ये ऐसा कि ऐसा कोट नहीं होगा, बट आपको कोई भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये डाटा आपको काम में आएगा. ठीक है, ये रीजनल फैक्ट शीट है, ये आईपीसीसी के साइड से मैंने लिए. ये एशिया के लिए हम बात कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज इंडिया इज इन एशिया एंड इट बिकम्स मोर सेंस टू टॉक अबाउट इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना. India is one of the most vulnerable country for climate change. We have around 7,500 kilometer of coastline, है ना. So when climate will change, it will lead to the deglaciation in the Antarctic and Arctic region. So it is going to raise your sea level, है ना. And since it is going to raise the sea level, we are one of the most vulnerable country, है ना, because we have one of the largest sea coastal area. ठीक है. So all these points are important in order to have multifaceted arguments in your descriptive answer, है ना. This year also in RBI grade B they have asked question to highlight the commitments of India, in terms of climate change. ठीक है, क्लाइमेट चेंज प्रिवेंट करने के लिए इंडिया क्या एफर्ट्स ले रहा है जिससे कि इंडिया का कमिटमेंट शो होता है. ठीक है, वो आपको उस आंसर में लिखना था. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एनएपीसीसी लॉन्च किया है 2008 में, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया है 2000 अराउंड 15-16, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. वी हैव कमिटेड INDCs in Paris climate deal, है ना. We are committed to generate 450 gigawatt of renewable energy.
तो ये क्या है, ये हमारा कमिटमेंट शो करता है ना, टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अभी इस स्लाइड पे आते हैं। द ऑब्जर्व्ड मीन सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हैज क्लियरली इमर्ज आउट ऑफ द रेंज इंटरनल वेरिएबिलिटी कंपेयर्ड टू 1800। इनको बोलना है कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1850 से 1900 के लेवल के काफी ज्यादा ऊपर है ना। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग। इतना पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, जो पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने वाला है। Since this temperature is rising, it is going to be a threat for the glaciers in Himalayan also, in Arctic and Antarctic also, in your northern Europe also. ठीक है, marine heat waves will continue, फायर वेदर सीजन, जैसे आपको पता होगा इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेस्ट फायर होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर होते हैं हमारे उड़ीसा में, एमपी में, उत्तराखंड में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में भी। अगर फॉरेस्ट में फायर लग गई तो वहाँ की भी जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको थ्रेट है, वो मर जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, कोई टाइगर है ना, हिरन है, वन हॉर्न राइनोसोर है, ये अगर लोग अगर मरना शुरू हो गए तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो फूड चेन सिस्टम है हमारे कंट्री में, फूड चेन सिस्टम जो है हमारे कंट्री में वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, so all these pillars will help you to write a descriptive answer, to have good arguments, है ना। And this slide is very much authentic because I have taken it from IPCC report only। ठीक है, so when you are talking about climate change you should be talking about 4 pillars। ठीक है, what are these 4 pillars? One is your atmosphere, second is your uh, hydrosphere, means marine area, है ना। थर्ड इज योर क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर मीन्स योर आर्कटिक अंटार्कटिक, वेयर द ग्लेशियर्स लाइज, है ना। एंड फोर्थ वन इज योर हवा हो गया, पानी हो गया, आपका हिमालय भी हो गया। अब क्या बचा, आपका बचा जमीन, है ना। जमीन को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे तो इन चारों पिलर्स पे बात होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे सब दिए है, देखो ये फॉरेस्ट फायर दिया है जो कि कहाँ पे थ्रेट है, ये लिथोस्फीयर पे है ना, जमीन पे है। देन मरीन हीट वेव्स, ये कहाँ पे है थ्रेट, आपका एटमॉस्फेयर में है। देन सरफेस विंड, मीन सरफेस विंड हैव डिक्रीज्ड, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर की बात चल रही है। ग्लेशियर, ये आपका क्रायोस्फीयर के बारे में बात कर रहा है, ये भी क्रायोस्फीयर के बारे में बात कर रहा है। रिलेटिव सी लेवल, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो in this way you can consolidate your argument so that you can come up with a sensible, mature and comprehensive arguments in your descriptive answer। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक एनवायरमेंट जो इश्यूज है वो नाबार्ड और आरबीआई की सिलेबस में है, दोनों के, है ना। तो आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले पीआईबी लेक्चर्स में हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे भी बात करेंगे जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज पे रिलेटेड होंगे, है ना। एनवायरमेंट पे भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, सो दैट यू कैन राइट और प्रैक्टिस आंसर्स ऑन इट। ठीक है, देन वी विल मूव अहेड विथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है, ये टैगलाइन पूछ लेते हैं क्योंकि लास्ट ईयर टैगलाइन पूछी थी किसकी, सॉइल हेल्थ कार्ड की, नाबार्ड में पूछा था, नाबार्ड प्रीलिम्स में। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है हमारी, ये इसका टैगलाइन पूछ लिया था, स्वस्थ धारा खेत हरा, है ना, ये टैगलाइन है सॉइल हेल्थ कार्ड की। तो ये पूछ लिया था नाबार्ड 2020 के प्रीलिम्स में। ठीक है, दैट्स वाई दी अभी उज्ज्वला 2.0 भी चल रहा है, वो न्यूज में है काफी, है ना। तो उसके लिए ये टैगलाइन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम पीएम उज्ज्वला योजना के हम जो फीचर्स है वो देख लेंगे, और फिर पीएम उज्ज्वला 2.0 है वो क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के आने के चांसेस है। पीएम उज्ज्वला स्कीम इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो नाबार्ड में इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम उज्ज्वला स्कीम आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो एनवायरमेंट का भी ये पार्ट हो जाती है, इसलिए नाबार्ड और आरबीआई दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ पीएम उज्ज्वला योजना, it was approved by cabinet committee on economic affairs with the budgetary outlay of 8,000 crore for next 3 years। next 3 years means it was launched in 2016। ठीक है, तो 2018 तक ये एक्सटेंड, ये 2018 तक तो ये थी, पर फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2021 तक। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विल प्रोवाइड 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600। ठीक है। बजट स्पीच ऑफ 2016 had announced about the scheme and made a budgetary provision of 2000 करोड़। उसके बाद आगे फिर 8000 करोड़ तक उसको अलोकेशन हर साल दो हजार करोड़ रुपए उसको दिए गए थे। ठीक है। कनेक्शन विल बी इशूड ऑन द नेम ऑफ वुमेन बेनिफिशियरीज। देख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड है। कनेक्शन विल बी गिवन इन द नेम ऑफ वुमेन बेनिफिशियरीज। ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू प्राइम मिनिस्टर्स गिव इट अप कैंपेन। ठीक है। जो सब्सिडी हमको मिलता था एलपीजी सिलेंडर पे, उससे लिंक्ड है ये। ठीक है। तो ये ऐसे जो यूनिक सेंटेंसेस है, ये मेंस में आपको पूछ लेते हैं नाबार्ड में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सब जो नोट्स है आप नोट निकाल के रखो आपके नोटबुक में, सो दैट यू कैन रिवाइज इट ड्यूरिंग बिफोर द एग्जाम, है ना। वो हैंडी हो जाता है, इजी पे पड़ता है। फिर आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है। पहले हमारा टारगेट कितना था? 5 करोड़। अभी ये 2.0 में कितना टारगेट है? नेक्स्ट 1 करोड़। ठीक है। इसके अंडर हमने टारगेट रखा है 1 करोड़। इन 2016 मिनिस्ट्री ऑफ, ये नोडल मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में नहीं आती, रूरल डेवलपमेंट में नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी नहीं आती। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है। नाबार्ड वालों को बहुत ये अच्छी आदत है, वो प्रीलिम्स में नोडल मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं। ठीक है। कभी कभी आरबीआई में भी आता है। सेबी और आरआरबी का तो पेटेंट क्वेश्चन होता है नोडल मिनिस्ट्री पूछने का। ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बाकी सारी चीजें सब सेम है, सिर्फ ये जो कवरेज है ऑफ बेनिफिशियरीज, वो अभी के लिए इन्होंने रखा है 1 करोड़। ठीक है। पीएम जो उज्ज्वला योजना है उसका कवरेज है नेक्स्ट अभी 1 करोड़ हाउस होल्ड को वो देंगे। ठीक है। कैश असिस्टेंट अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है 1600। ये यहाँ पे उसका ब्रेकअप दिया है कि भाई 1250 जो है वो डिपॉजिट है सिलेंडर पे, तो ये पूरा 1600 का ब्रेकअप दिया है। इसका एडिशन करोगे तो आपका 1600 आएगा। ठीक है। तो ये ब्रेकअप ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, बट ये 1600 जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेटा पे आएंगे। ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड और आरबीआई सिलेबस में, है ना। और पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेस आप कम पड़ते जाएंगे, आपके रिसोर्सेस, है ना। रिसोर्सेस 150 करोड़ के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेस है ही नहीं, और इसके लिए तो हमारे रिसोर्सेस पे अभी स्ट्रेस आ रहा है ना। दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है। सो जब मोदी जी आए थे तब वो 125 करोड़ की बात करते थे। ठीक है। 125 करोड़ देशवासियों को मेरा नमस्कार ऐसा बोलते थे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया है? 139 करोड़ एज पर यूनाइटेड नेशन डाटा। ठीक है। 139 करोड़ है ये, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इसमें 5-10% कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो 137 138 करोड़ भी आप अगर समझ लेते हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। और इसमें भी हमारा 60% यूथ पॉपुलेशन है। ठीक है। अगर इतने यूथ होंगे तो फिर उतना क्वांटिटी में हमको जॉब भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। दैट आल्सो बिकम्स अ हर्डल। ओके। सो द इंडियन पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया और चाइना का। ठीक है। इंडिया और चाइना मिला के ही आपका मोर देन 35% होता है, इंडिया और चाइना मिला के सिर्फ, है ना। चाइना का पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है तो उनका 18 मान लो और हमारा 17 मान लो, तो 35% से ऊपर ही हो गया। सो दिस इज नॉट द गुड सिनारियो। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 464 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। टोटल लैंड इज अराउंड 11 लाख, लेट से 11.5 लाख स्क्वायर माइल। ओके। 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज अर्बन, मतलब क्या है कि 65% अभी भी रूरल एरिया में रह रही है। अगर 65% अगर रूरल एरिया में रह रही है तो बहुत सारे रूरल एरिया में हमारा इंटरनेट नहीं है। ठीक है। इंटरनेट नहीं होगा तो अभी पैंडेमिक में वो लोग आपका वीडियो लेक्चर्स कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्कूल जो अभी ऑनलाइन शुरू है ना। तो इसमें मुझे कहना है कि रूरल जो पॉपुलेशन है उनका अभी नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन। ठीक है। तो ये ऐसे सब जो आर्गुमेंट्स है वो आपको एक एक करके ध्यान में रखने हैं, सो दैट यू कैन कोट सच आर्गुमेंट्स इन योर आंसर।
और ये जो डाटा है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रही है आपकी एग्जाम, है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव भी हो गई है। तो ये जो डेटा है 139 करोड़, ये पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन, देन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये ऑल ओवर इंडिया के 464 है। अगर आप यूपी बिहार में देखो तो ये 1200 से ऊपर है। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1200 से ऊपर लोग रहते हैं। मुंबई की और दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, और पूरे स्टेट की यूपी और बिहार की देखोगे और वेस्ट बंगाल की देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मुंबई और दिल्ली की करीब करीब 1200 के आसपास है। ठीक है, मीडियन एज है 28.4, मतलब इंडिया इज अ यंग कंट्री, ये मतलब निकलता है इससे। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डेटा आप नोट कर लो, और ये तो रिसेंट है, एकदम रिसेंट, ये पीआईबी से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मोस्ट ऑथेंटिक डाटा। तो इसमें ये टीएफआर ऑफ द कंट्री, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है कि एक एक जो वुमन है, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो उसके फर्टाइल एज में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, वो एवरेज निकाला जाता है पूरे कंट्री का, और उसके बेसिस पे अभी ये कितना है हमारा 2.2। 2.1 जब हमारा होगा तब हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, क्योंकि 2.1 आने की वजह से जितने लोग मरते हैं उतने ही लोग आते हैं, तो वो पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो होती है हमारी स्टेबलाइज होती है। ठीक है, तो ये 2.1 जो वाला जो फिगर है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस ईयर नाबार्ड मेंस में आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कर्व पे क्वेश्चंस थे, है ना, वो कहाँ से आए, वो यही से आए। तो जो भी पेड यूजर्स है हमारे आरबीआई और नाबार्ड कोर्स के, आपके नाबार्ड वाले कोर्स में, नाबार्ड में ईएसआई में पॉपुलेशन नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैंने रिसेंटली एक पॉपुलेशन पे एक लेक्चर बना के उसमें डाला है। ठीक है, तो उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कर्व क्या है, फिर जो पॉपुलेशन के जो इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, वो भी उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, और जो क्योंकि ये 2021 का जो ईयर है ये सेंसस वाला ईयर है। ठीक है, कोरोना आ गया है, बट ये इस साल हमारा सेंसस होने वाला था, वो होगा भी। इस साल का जो 2021 का सेंसस है वो पहला डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार नाबार्ड ग्रेडे में आता है। ठीक है, SC ST का पॉपुलेशन, फिर टोटल हमारा पूरा इंडिया का पॉपुलेशन, तो कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस डाटा बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, 28 आउट ऑफ 36 स्टेट्स हैव अचीव्ड रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। सिर्फ कुछ स्टेट है, मतलब 2 और 6 8 स्टेट है, उसमें आपका यूपी है, बिहार है ना, और मेरे ख्याल से आई थिंक राजस्थान भी है। तो ऐसे कुछ 6 स्टेट है जिनका फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से ऊपर है ना, एंड दैट्स व्हाई वी सी दिस पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड इन आवर कंट्री। क्रूड बर्थ रेट जो है वो 23.8 से लेके अभी 20 पे आ गया है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, हर 1000 लोगों के पीछे पर ईयर कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, 1000 लोगों के पीछे हर पर ईयर कितने लोग जन्म ले रहे हैं, तो वो है एज ऑफ नाउ 20। ठीक है, तो ऐसे हजार हजार के ग्रुप कितने होंगे हमारे हमारे देश की आबादी में, है ना, तो इतने ज्यादा, इतने लोग हर साल पैदा हो रहे हैं हमारे कंट्री में। डिकेडल ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 21.54 टू 17.64। 17.64 भी बहुत ज्यादा है ना, ये 4-5% के आसपास होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, हमारा पॉपुलेशन बहुत जोरों से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको प्रीलिम्स में और मेंस में भी हेल्प करेगा। अब देखते हैं कुछ प्रीलिम रिलेटेड प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरआरबी में, आरआरबी का मेंस है अभी, उसके जीए में, फिर नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी भी ड्यू है अभी नेक्स्ट मंथ, उसमें ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये खेल रत्न अवार्ड है, ये राजीव गांधी गांधी जी के नाम पे था पहले। So it has now been renamed to मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, it was established in 1992, it was established in 1992, now it has been renamed as मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, मूविंग फर्दर, ये पीएम दक्ष जो है ये स्कीम, एक्रोनिम आर बीइंग आस्क्ड इन नाबार्ड एग्जाम। ठीक है, दे आस्क एक्रोनिम्स ऑफ ट्राइफेड, अपेडा, देन दक्ष। ठीक है, since it is related with social justice and it is part of your syllabus also, social structure of India,
इज पार्ट ऑफ नाबार्ड एंड आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। पीएम दक्ष, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? पीएम दक्षता और कुशलता संपन्न हिताग्रही, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है आपके बैकवर्ड क्लास से, सफाई कर्मचारी से, ठीक है। एससी एसटी से रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर में है तो वो पूछ लेते हैं नाबार्ड में, ठीक है। देन ट्राइफेड सेलिब्रेट्स 34th फाउंडेशन डे ऑन योर 6th August, ठीक है। वी मस्ट फोकस ऑन लाइवलीहुड सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर आवर ट्राइबल्स, सिंस इट इज रिलेटेड विद ट्राइबल ट्राइफेड बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राइफेड का लॉन्ग फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट इट इन कमेंट सेक्शन, ट्राइफेड का लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसका 34th फाउंडेशन डे अभी इन्होंने सेलिब्रेट किया है। देन वी कम टूवर्ड्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है नोएडा में, ठीक है। नोएडा में बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं आपका वेबिनार ऑन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि भाई जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट तैयार होता है कंट्री में, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल फ्यूल, ठीक है। एंड फ्यूल क्या है? वो बायोमिथेनेशन है, मिथेनॉल इज अ फ्यूल, है ना। मिथेनॉल इज अ फ्यूल, मीथेन इज ऑल्सो फ्यूल। So the all the industrial organic waste should be converted to energy through biomethanation project, ठीक है। So this global environment facility, our Ministry of New and Renewable Energy and UNIDO have collaborated to undertake these projects across the world, ठीक है। अभी बात तो इंडिया की चल रही है, इंडिया में भी है ये। तो since it is related with the global institutions which are related with sustainable development, it becomes important, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बायोफिल डे है ये हुआ है आपका 10 अगस्त पे, और ये हमने ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है ये भी नोट डाउन करके रखनी है, इसके इस पे भी दे में यू मे गेट द क्वेश्चन ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ट्राइफेड। ट्राइफेड ट्राइफेड हैज कोलैबोरेटेड विद स्टेट ऑफ असम टू एस्टेब्लिश कॉम्प्रहेंसिव नेटवर्क ऑफ वंधन केंद्र, ठीक है। तो ये स्टेट रिलेटेड यूनिक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का, है ना। एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद आसाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन करके रखो। And here we have completed the important current affairs from PIB. We have also thrown some light on descriptive answers also. Descriptive answer के मॉडल आंसर जो है आपको मेरे नेक्स्ट PIB सेशन में मिलेंगे, ये होगा फ्राइडे को। मेरा PIB का सेशन जो आता है वो आता है हर फ्राइडे को सुबह मॉर्निंग 9 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 9 AM, ठीक है। So if you want to build your answer writing skill and if you want to ensure your selection, so you that's why for that reason you should follow my PIB sessions. And if you are if you have liked the content that I am providing and the initiative that we have taken, if you have liked that initiative, then please do like, share and subscribe, ठीक है। So